اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4/1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے قبل خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی جو لازم تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے انتخابی نشان کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی پروقار تقریب، صدر مملکت عارف علوی نے شہباز شریف سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری جلد متوقع۔ مسلم لیگ نون کی ممکنہ وزراء کو لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ پنجاب میں کابینہ کی تشکیل 2 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 15 اراکین کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ نون لیگ 12، کاف لیگ 2 اور آئی پی پی سے 1 وزیر ہوگا۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروجیکٹ شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا روڈز کے زیر تکمیل منصوبے جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب بھر کے روڈ برج پر رپورٹ طلب۔ 6 ماہ میں پنجاب کی 153 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے سڑکوں کی تعمیر و بحالی جلد چاہتے ہیں لیکن معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پنجاب بھر میں کوئی بھی سڑک ٹوٹی پھوٹی نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویلنشیا ٹاؤن کے قریب کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان۔ مریم نواز کا مجوزہ سائٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کینسر ہسپتال کی سائٹ بارے بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کی کینسر ہسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین ڈاکٹر بلانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری گرلز اسکول وحدت کالونی کا دورہ۔ مختلف کلاس رومز، لائبریری، بایولوجی لیب اور اسپورٹس روم کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے طالبات سے تعلیمی سرگرمیوں بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کلاس دہم کے امتحانی مرکز کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بچیوں سے اسکول میں درپیش مسائل بارے پوچھا۔ صحیح سے بتاؤ، اچھی ہے، کام میں بتاؤ، اگر سب کے سامنے نہیں بتا سکتے۔ نہیں اچھی ہے، اچھی ہے۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ 8 8th؟ جی۔ اس کی کاپی دکھاؤ مجھے، جو آپ کی نوٹ بک ہے وہ کہاں؟ میرے پاس IT یہاں کی پڑھائی کیسے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ نہیں بالکل یہ امپروومنٹ کہاں کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ پرفیکٹ لگتا ہے۔ پرفیکٹ لگتا ہے آپ کو؟ سنی اتحاد کونسل کا وفاق کے بعد پنجاب میں بھی سیاسی محاذ گرم کرنے کا فیصلہ۔ کارکنوں کی گرفتاریوں، امن و امان اور مہنگائی کی صورتحال کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے۔ اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق اسپیکر اپوزیشن کی درخواست پر 14 روز میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم، اشیاء کی کوالٹی اور قیمتوں کو مانیٹر کرنے کے لیے کنٹرول روم قائم۔ کنٹرول روم صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک کام کرے گا۔
सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का कंट्रोल रूम का दौरा, कहते हैं 15 रमज़ान तक 64 लाख खानदानों में रमज़ान पैकेज तकसीम कर दिया जाएगा। 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी मईशत होगा। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। हमने अफगानिस्तान अशिया की बरामद पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की। सऊदी अरब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। FPCCI में साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का शुरा से खिताब। पंजाब में नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। लाहौर में नमूनिया से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे भर में 345, लाहौर में 44 नए केसेस सामने आए। लाहौर में रवां साल नमूनिया से 73 हिलाकतें और 8189 केसेस रिपोर्ट हुए। नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद। पंजाब असम्बली में जमा करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा। माह रमज़ान से कबल महंगाई का तूफान, सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। लहसुन 680, अदरक 620, सब्ज़ मिर्च 310, प्याज 260, टमाटर 140 रुपये किलो फरोख्त। सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। बैंगन 120, मटर 110, फूल गोभी 100, आलू 90 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 980, खजूर 600 से 400, अमरूद 190 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 583 रुपये किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 387, परचून रेट 402 रुपये किलो मुकर्रर। 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए 249 रुपये दरकार। मार्केट में अंडों की पेटी 7350 रुपये में फरोख्त। अस्पतालों में अद्वियात, बेड और वेंटिलेटर न मिलने के जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, हुकूमत है। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अस्पतालों में उखाड़ पिछाड़ की जाए? जब भी अद्वियात की किल्लत की बात की, इंतज़ामिया इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आती है। हमारे नुमाइंदों को किसी किस्म का इंतकाम का निशाना बनाया गया तो तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी जाएंगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर बलाच कत्ल केस की तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने तीफी भट्ट को मरकजी मुलजिम करार दे दिया है। DIG इमरान किश्वर का कहना है, शवाहिद के मुताबिक अमीर बलाच को तीफी भट्ट ने ही कत्ल करवा दिया है। मुलजिम के रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे। मुकदमे में जमानत के बाद दोबारा नए इल्जामात के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत किसी मुलजिम को बाद अज़ गिरफ्तारी या कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दे तो मुतल्लिका इदारे एहतराम करे। जस्टिस अलीज़िया बाजवा के रिमार्क्स। कम उम्र बच्चियों की शादी के कानून पर अमल दरामद का मामला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की सरबराही में अहम इजलास। कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकने के लिए SOP से मुतालिक गौर किया गया। जस्टिस अनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम की थी। ट्रैफिक पुलिस का ई चलान नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। ई चलान नादहिंदा को ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलतें नहीं मिलेंगी। कार्रवाई के लिए सेफ सिटी पुलिस खिदमत मरकज ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम को यकजा कर दिया गया है। पासपोर्ट बनाने वालों के लिए नई मुश्किल। लाहौर में रीजनल पासपोर्ट दफातर के सर्वर में फनी खराबी, लिंक डाउन होने से पासपोर्ट का इजरा रुक गया। डाटा एंटर न होने से सबको परेशानी का सामना। उम्रा और हज पर जाने वाले अलग परेशान। सुबह दे आए 7 वजे इत्थे पहुँच गए ते कागज़ कुगज़ पुर कराए ने, बैंक च पैसे जमा कराए ते हुण इत्थे जिन्हों भी पुछीदा होंदा जी कोई पता नहीं सिस्टम कदों आउणा।
کہ यहीं ठहर जाइए जी पता हुए थे वहाँ कोई पता नहीं। इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम बंद है और पता नहीं कब खुलेगा, वेट करना है, वेट कर लें, जाना है तो वापस चले जाएं। ये सिर्फ ना इनके पैसे बनाने के ढंग हैं। नॉर्मल की भी फ़ीस जमा होती है, प्रिंटिंग की उतनी कॉस्ट है, अर्जेंट की भी उतनी कॉस्ट है। लोग मजबूरन अर्जेंट की फ़ीस जमा करवा रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिले बहुत कर रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक फ़ीस जमा करवाई है 10,000 रुपये, ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने कोई विंडो नहीं रखी हुई। ज़लालत वही है। साफ पंजाब प्रोग्राम के तहत इंतजामी मशीनरी, मुतहरिक, वॉल चॉकिंग, तजावुज़ात का खात्मा, पैच वर्क पर काम जारी। कमिश्नर लाहौर ने मंडियों में फल और सब्जियों की नीलामी के औकात कार्ड तलब कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फाल होने से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली है। साफ पानी की मद में 1.5 अरब रुपए पर पानी फेर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। कमिश्नर लाहौर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की गैर फाल होने पर इंतजामी अफसरान पर बरहम। पाकिस्तान रेलवे की रिकॉर्ड आमदन 8 माह में रेलवे ने 50 अरब रुपए कमा लिए हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक साल के ख़त्म तक 80 अरब तक आमदन मतवक्के है। गुज़िश्ता साल ये आमदन 32 अरब रुपए थी। रिकॉर्ड आमदन पर CEO रेलवे ने तमाम अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ता सफाई मुहिम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी कर दी हैं। सफाई मुहिम 4 से 9 मार्च तक जारी रहेगी। तुलबा तालिबात ने असातिज़ा के साथ मिलकर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। डेप्यूटी DEOs और AEOs मुहिम की निगरानी करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम पेट शो नुमाइश में मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों को लाया गया। तुलबा तालिबात की आगाही के लिए एनिमल फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए। ये बहुत अच्छा है एक इन्होंने बनाया कि इसके अंदर ना सारे जब गैदरिंग होती है ना सब अपने अपने पेट्स वगैरह लेकर आते हैं ना तो वो एक अलग फील होता है और कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये वेट्स केयर क्लब का एनुअल पेट गैला है। I'm working as a volunteer and it's a good अच्छी opportunity है for the pets to interact with each other. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के सालाना मेगा इवेंट टाकरा 2024 का शानदार इख्तिताम। इवेंट में मुख्तलिफ जामियात के 4000 से ज़ायद तुलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रो रेक्टर UCP हादिया ऐवान की खुसूसी शिरकत। UCP टाकरा में शिरकत को तुलबा तालिबात ने एजाज़ करार दे दिया। तकरीब के अख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकाबले जीतने वाले तुलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। और जिलानी पार्क में जारी जश्न बहारा मेले में रौनकें उरूज पर हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के हमरा जिलानी पार्क का रुख कर लिया है। रंग बिरंगे खूबसूरत स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। जश्न बहारा फेस्टिवल 10 मार्च तक जारी रहेगा।